Before we start, I'd like to formally introduce CA Ayush Goyal. He's a fellow member of ICI. He is CA in the with 39th All India rank. He has also scored All India 14th in his PCC nation. He has also qualified in CMA examinations with gold medals in each of them, including AIR 1 and rank at all levels. He also holds a bachelor's degree in commerce from St. Xavier's College. He got associated with IBM as a business solution consultant and has provided solutions to various clients in India and outside India, including DHL, NOL, etc. During his 2.5 years of tenure with IBM, Ayush has been certified as a SAP business consultant. He is presently engaged with Messer Bass and Co. LLP Chartered Accountants as a designated partner and heads the direct tax division of the firm. He has a niche in the assessment and appellate matters and has successfully represented various clients in front of various income tax authorities. He is associated as a certified mentor with various startups and incubators like Neolab, Calcutta Angel Network, and also a motivational speaker. He has been traveling all over the country as a resource person and has also been invited by EIRC and various other professional institutions. He is a regular contributor to various forums and journals of EIRC, WIPCA, ACAE, and other numerous study circles. He loves teaching and training and has been a mentor to various successful CA aspirants. He regularly organizes various exam-oriented sessions, mentoring sessions, and mock tests for the benefit of various CA aspirants. His love for the students also led to his involvement as a member of the GMCS committee of EIRC for 2017-18 and involved in direct tax committees at various study circles. With this, I request everyone to kindly give a round of applause and welcome our speaker for the day. I'd like to request Anil ji to kindly come forward and present a memento to our speaker. I'll also request him to present the speaker with a 65th year mug of ACAE. Thank you. Without further ado, I'll request Ayush Goyal ji to kindly take the session forward. So I have been given the tedious task of introducing this act for you. तो ये डिस्कशन मैं और आयुष वी आर हैविंग जब हमारा रीजनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था कि इसको कैसे स्ट्रक्चर करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ACAE for arranging this detailed session for everyone, because what I feel is this is the need of the hour, and thank you again for making me part of this. So yes, by the looks of the audience it is very clear कि हम लोग सबको अब ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 में डूब जाने का दरकार है. और ये डूबना या ये डिस्कशन is not restricted to a day or maybe 4 days of session. We need to understand that this needs to be a continuous exercise. You need to understand that you are again in your student era. तो जो लोग स्टूडेंट है वो लोग के लिए तो अच्छा है, अब एक ही चीज़ पढ़नी है. बट जो लोग ऑलरेडी वो 1961 को पढ़ते हुए आए हैं उनके लिए ये एक अनलर्निंग एंड रीलर्निंग है. क्यों अनलर्निंग रीलर्निंग है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे. बट इट्स वेरी क्लियर दैट वी नीड टू अगेन गो बैक टू आवर स्टडी डेज. अच्छा, आप मेरे को बताइए यहाँ पे कितने लोग सेक्शन 68 जानते हैं? अच्छा छोड़िए, कितने लोग सेक्शन 139(1) का रिटर्न जानते हैं? हाथ उठाइए सर, कोई शर्माने वाली बात नहीं है. मैं भी जानता हूँ, हम लोग सब जानते हैं प्रॉब्ली. बट उसका रेलिवेंस सेक्शन 2025 में क्या है प्रॉब्ली किसी को नहीं पता. या मैं बोलूँ सेक्शन 102 103 है कुछ, तो बोलेंगे नहीं पता. सो ये लर्निंग, बिकॉज फॉर अस हु आर इनटू इनकम टैक्स प्रैक्टिस और इनटू इनकम टैक्स मैटर्स इन एनी फॉर्मेट, बी इट रिटर्न फाइलिंग एंड एनीथिंग, हमें एक आदत सी पड़ गई थी. 44AB बोलते ही हमारा रात को या दिन में किसी भी वक्त में माथा वो स्टार्ट हो जाता था, ऑडिट की बात हो रही है. बट अब मैं अगर सेक्शन 63 बोलूँ या सेक्शन 58 बोलूँ तो आपको लगेगा ये क्या फ्रेंच और ग्रीक बात कर रहा है ना. सो ये प्रोसेस इटसेल्फ इज द डिफिकल्ट थिंग, एंड एज अ ह्यूमन टेंडेंसी वी हैव अ टेंडेंसी टू स्टिक टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड. सो दैट इज द डिफिकल्ट प्रोसेस. क्या यही चीज़ है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कि कुछ और भी हुआ है? तो और भी कुछ हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. आई ले द फ्रेमवर्क फॉर यू. ऑब्वियसली इट विल बी डिस्कस्ड
in greater details, chapter wise या topic wise in the days to come, and we have very eminent speakers. तो उस केस में मुझे सबसे इजी जॉब दिया गया कि खाली ज्ञान दो, बताओ और भाग जाओ, ठीक है ना. सो जोक्स अपार्ट, विल डिस्कस. हाउसएवर अगर आप देखेंगे, ये अच्छा हुआ यहाँ इनकम टैक्स एक्ट की बुक रखी हुई है. पहले का एक्ट इतना मोटा हुआ करता था, ठीक है ना. अब आप बोलेंगे कि ये एक्ट तो अभी भी इतना है, नहीं, इसमें से इतने पेजेस हटा दीजिए और लास्ट के इतने पेजेस हटा दीजिए, सिर्फ इतना एक्ट अब. So it is nearly halved, rather more than halved. So how this has been achieved? First, let us understand here. First, rather letting us understand how it has been achieved, why it was required. So हम थोड़ा सा history में जाते हैं to be able to understand why this was required. So our existing Income Tax Act is Income Tax Act 1961. When was it enacted? या when did it come into force? अच्छा, क्या 1961 से पहले हमारा कोई एक्ट था इनकम टैक्स का? 1922. Now, when did Income Tax Act 1961 came into force? With effect from? Right. 1st April 62. तब आप बोलेंगे सर इसका एक्ट का नाम 61 क्यों था? हाँ, तो उसका 62 इसलिए था क्योंकि Income Tax Act 1961 used to still runs on the principle of financial year and assessment year, and wherever until otherwise specifically stated, Income Tax Act 1961 में अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है with effect from 1st April say 2025, so that means assessment year 25-26 and not the financial year 25-26. Are we all on the same page with respect to this understanding? अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में किसी भी साल अमेंडमेंट में लिखा हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 25 या 1st April 24 until otherwise specifically stated that first day of April या वैसा कुछ अगर स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ, अदरवाइज अगर 1st April 1/4/2025 लिखा है, दैट मीन्स असेसमेंट ईयर 25-26 एंड नॉट फाइनेंशियल ईयर 25-26. इसलिए जब उसका इनैक्टमेंट हुआ 1st April 1962 से, दैट मेंट assessment year 62-63 and financial year 61-62. तो वहां का तो लॉजिक आ गया, लेकिन सर ने मेरी अगली बात छीन ली. अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, ठीक है, इसमें भी वैसा ही लिखा हुआ है 1st April 2026. तो आप बोलेंगे सर क्या टाइम पास कर रहे हो, सेम ही तो चीज़ है, वहाँ 61 का 62 लिखा था, यहाँ 25 का 26 लिखा है, आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, वैसा बोल दो. नहीं, देयर इज अ डिफरेंस. नाउ दिस पर्टिकुलर इनकम टैक्स एक्ट 2025 हैज डन अवे विद द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. नाउ व्हाट कंसेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड? टैक्स ईयर. वो भी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ उस पर भी हम लोग आएंगे, बट द कंसेप्ट ऑफ टैक्स ईयर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, जो अभी के लिए हम समझ के चलते इज नथिंग बट दी प्रीवियस ईयर और द फाइनेंशियल ईयर, जो हम पहले ऑर्डिनरी सेंस में समझते थे, ठीक है ना. तो यहां पर लिखा है 1st April 2026. दैट मीन्स नाउ इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 26-27 और टैक्स ईयर 26-27. टैक्स ईयर, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 26-27. यानी इवन दो इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन नेम्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 2025, but for financial year 25-26, that is the year which we are already running, does not pertain to this act. It still pertains to the old act. तो यहाँ पे gap है in the year and the year in which it is enacted. Clear on this? Now, why this concept of tax year has been introduced? Anyone? उनका तो लॉजिक यही है कि नॉर्मल आदमी कई बार कंफ्यूज कर जाता था, असेसमेंट ईयर टैक्स ईयर कभी चालान भरने में गलती कर जाता था, या हम कुछ बोल रहे हैं असेसमेंट ईयर के हिसाब से वो समझ नहीं पाता. हाँ सर, लेकिन मैं आपने जो कहा बहुत सही है कि वो कंफ्यूजन मिटाने के लिए. हाँ सर, जिस ईयर के पर्टेनिंग आपको टैक्स देना है वो टैक्स ईयर सही है. सो जो भैया ने कहा कि जिस ईयर के पर्टेनिंग टैक्स देना है वो टैक्स ईयर, दिस इज अ ग्लोबल फेनोमेनन. What our government has tried to do
has tried to make it more equivalent or more relevant with respect to the tax acts enacted throughout the world, be it UK, be it US or be it other developed countries. वहाँ पे जिस तरीका से इनकम टैक्स एक्ट को इनैक्ट किया गया है या जिस बेस पे वो एक्ट्स वर्क करते हैं उसी बेस को यहाँ लाने की कोशिश की गई है. अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड कोशिश की गई है, क्योंकि एक्चुअल में हुआ है नहीं हुआ है वो आप बाय द एंड ऑफ दीज 8 सेशंस आप खुद जवाब दोगे. आई एम नॉट हेयर टू गिव अ प्रीमैच्योर आंसर ऑन दैट. ठीक है. दूसरा रेलिवेंट रीजन जो सर ने कहा, बट इसका एक रेपरकशन भी है. रेपरकशन क्या है? अब हम जाते हैं फ्रॉम द असेसमेंट पर्सपेक्टिव. तो असेसमेंट पर्सपेक्टिव में 2 साल की फाइल्स खुलेंगी जिसमें कि लिखा रहेगा 26-27, है ना. 2 साल की फाइल्स एक साथ खुल सकती हैं, दोनों में 26-27 लिखा रहेगा, बट 2 अलग अलग साल की फाइल्स होंगी. वो एक होगा असेसमेंट ईयर 26-27, एक होगा फाइनेंशियल ईयर 26-27 या टैक्स ईयर रादर 26-27. So that will lead to more a number of confusions as far as a particular wing of the law is concerned. Are you all agreeing to what I am or trying to apprehend to what I am trying to say? मैं री-एक्सप्लेन करता हूँ. नोटिस तो नेक्स्ट ईयर से तो नोटिस तो टैक्स ईयर बेसिस में आएगा. ईयर अलग अलग है ना. हाँ देखो, एक देखो नोटिस जब आएगा, अगेन सी डोंट थिंक विद रिस्पेक्ट टू मी एंड यू बिकॉज वी आर एडुकेटेड एनफ टू एप्रीहेंड द लॉ. मेरे पास आज भी ऐसे असेसीज आते हैं जो एक ही साल के 2 नोटिस को बोलते हैं या 2 अलग अलग नोटिस को बोलते हैं कि सर वापस से नोटिस आ गया, जब उनको अलग अलग सालों को समझाना पड़ता है. और यहाँ पे तो दोनों में 26-27 लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि 25-26 का अगर नोटिस आएगा तो क्या लिखा हुआ आएगा? नहीं आएगा ना. क्यों नहीं आएगा? 1 अप्रैल के बाद तो असेसमेंट ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा. नहीं, बट लास्ट ये ओपनिंग जिस साल एक्ट के अंदर होगा, जिस एक्ट के पर्टेनिंग होगा, जिस ईयर का होगा, आपको तो उस ईयर के एक्ट के हिसाब से करना होगा. अच्छा चलो आप 25-26 और कंफ्यूजन छोड़ दो, आप 24-25 ले लो. हाँ, ये एक्ट हैज नॉट, देयर इज अ सनसेट क्लॉज, बट दिस एक्ट इज शेड्यूल्ड टू कंटिन्यू फॉर सर्टेन प्रोविजंस. वो भी जब आपका, आई थिंक द लास्ट सेशन इज अबाउट द मिसलेनियस प्रोविजंस या सनसेट क्लॉज, तो उसमें आपको डिटेल में समझाया जाएगा. दिस एक्ट इज शेड्यूल्ड टू कंटिन्यू. तो वो एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी. अभी आप, मेरे को लग रहा है कि मैं बता रहा हूं तो और कंफ्यूजन हो रहा है. हाँ, तो इसको एक बार के लिए पार्क करते हैं, बट अदरवाइज आप ये समझ रहे हैं हम एक असेसमेंट ईयर से टैक्स ईयर की तरफ मूव कर रहे हैं. क्लियर? नाउ व्हाट इज टैक्स ईयर? हमने अभी समझ तो लिया, अब उसको हम थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको. ठीक है ना, बिफोर आई मूव ऑन टू द अदर पार्ट्स. ठीक, आई विल डू दैट. देखिए, पहले सेक्शन 3 क्या बोलता था? पहले सेक्शन 3 बात करता था असेसमेंट ईयर के बारे में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में. अब सेक्शन 3 बात करता है टैक्स ईयर के बारे में. सो इसमें केस में सेक्शन रिमेन्स द सेम. फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, टैक्स ईयर मीन्स द 12 months पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर commencing on the 1st April. ठीक है? In case of business profession newly set up or a source of income newly coming into existence in any financial year, the tax year shall be period beginning with the date of setting up of such business or profession or the date of which such source of income newly comes into existence and ending with the said financial year. Basically टैक्स ईयर का मतलब हमेशा फाइनेंशियल ईयर रहेगा, 1 अप्रैल से चालू होने वाला. हाउसोएवर, ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद मैं एक इसमें ऑब्जर्वेशन दूंगा. हाउसोएवर, अगर मेरा बिजनेस न्यूली सेटअप होता है, इन दैट केस
my tax year will start from the year such business or profession comes into existence. से मेरा नया बिजनेस सेटअप हुआ 1 अक्टूबर को, तो मेरे 1 अक्टूबर से 2026 को, तो मेरा टैक्स ईयर क्या होगा? 1 अक्टूबर 2026 से लेके 31 मार्च 2027। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? या फिर अगर कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आया है तो उस सोर्स ऑफ इनकम के लिए मेरा टैक्स ईयर होगा, उस सोर्स ऑफ इनकम का डेट ऑफ कमेंसमेंट टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नाउ कम्स माय क्वेश्चन, लेट मी शेयर विथ एन एग्जांपल। सपोजेडली मेरा एक फर्म था मेसर्स XYZ इंटरनेशनल। We know the firm can get amalgamated into a private limited company or can get converted into a private limited company, जो भी आप इसको बोले, transferred into a private limited company. Say during the period 1st October 2026 को मेरा XYZ International got converted into XYZ International Private Limited. Clear on this? Now for all we know that for operations purpose XYZ International Private Limited can continue for a limited period of time the bank account held by XYZ International. किसी को कोई ऑब्जेक्शन यहां तक में? तो 1 अक्टूबर के बाद से फॉर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, वट एवर इट इज, XYZ इंटरनेशनल का बैंक अकाउंट वॉज कंटिन्यूड बाई XYZ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड फॉर इट्स ऑपरेशनल पर्पजेस। अब सपोज करिए XYZ इंटरनेशनल का टैक्स ऑडिट होता है, ठीक है? उसके लिए टैक्स ईयर क्या होगा? नहीं सर, पैन बेस्ड होता है, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको क्या पढ़ के बताया? टैक्स ईयर को चेंज किया गया सिर्फ न्यू सेटअप ऑफ बिजनेस के लिए। क्लोजर ऑफ अ बिजनेस में ट्रंकेटेड टैक्स ईयर होगा, ऐसा सेक्शन 3 में नहीं लिखा हुआ है। हाँ, नहीं वो एग्जिस्टेंस खत्म हो गया सर, आपका पैन तो चल सर, नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूं, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। कहां से? इनकम टैक्स एक्ट में एग्जिस्टेंस कैसे खत्म होता है? बैंक अकाउंट चल रहा है, बैंक अकाउंट पुराने पैन से ही चल रहा है। बैंक अकाउंट आप सन का वाइफ में दिखा दीजिए ना, बेटा वाइफ में दूसरा दिखाई तो करो नहीं बैंक अकाउंट। सर मैं बता रहा हूं आप, हाँ मैं बता रहा हूं, आप जो बोल रहे हैं प्रैक्टिकली हम वो करेंगे, बट टेक्निकली अगर हम लॉ की बात करें तो देन देयर इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज एज पर देम फॉर XYZ इंटरनेशनल द टैक्स ईयर इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 2 अक्टूबर के बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो उनको रिपोर्ट 30 सितंबर तक ही करना है, बट उनके नाम, पैन के नाम पे उसके बाद हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन आ रहा है। क्लियर है? वो XYZ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में लिया तो प्राइवेट लिमिटेड उसको रिपोर्ट भी करेगा, बट डू यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ स्पेसिफिक पीरियड which may lead to overlapping, because truncated should also have been done for the closure of a business. Truncation of the tax year should also have been done for the closure of the business, like it has been done for a newly set up business. डिफरेंट आता है ना? हाँ, जमा दोनों का होगा, जमा दोनों का होगा। अब आपका बैंक अकाउंट जो अक्टूबर की एंट्रीज होंगी उसमें जाएगी, बट यहाँ पे आप टैक्स ईयर रिपोर्ट कर रहे हो अप टिल मार्च, अब टिल मार्च रिपोर्ट कर रहे हो, उस पैन के डेटा आ रहे हैं आपके पास AIS में, TIS में, वो मार्च के बाद के भी उस बैंक के डिटेल्स आएंगे। सपोज करें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अज्यूमिंग इंटरेस्ट की एंट्री आई, तो आपको तो उसको अलग करना होगा ना, उसको हटाना होगा ना। आप ऊपर में आप अज्यूम करिए, आप ऑडिट पीरियड में क्या लिख रहे हैं? ऑडिट पीरियड में लिख रहे हैं आप अप्रैल टू मार्च, और फिर नीचे में वो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की एंट्रीज हटा रहे हैं। आप उसका एक एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। मेरा पॉइंट वही है जो आप बोल रहे एकदम वैलिड है, करना वही है, कुछ उसमें कंफ्यूजन नहीं है, बट दिस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट,
बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैपिंग थिंग। अगर यहीं पे बोल देता कि क्लोजर में भी जिस दिन क्लोज हो गया उस दिन तक का ट्रंकेटेड टैक्स ईयर होगा, तब वो एक्सप्लेनेशन की भी दरकार नहीं पड़ती। आप ऊपर टैक्स ईयर में लिख देते 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। क्लियर है यहां तक ये कंसेप्ट? चलिए, अच्छा, क्या और कुछ चेंजेस आया है? देखिए, अगर मैं बहुत बेसिकली इस चीज को समझाऊं तो इस इनकम टैक्स एक्ट 2025 का क्या एक्सरसाइज हुआ है? इट्स बेसिकली क्या हुआ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हम देखें, सो इट हैज बीन मोर देन 6 decades. देयर हैज बीन मोर देन 65-70 अमेंडमेंट्स। अगर हम एक फाइनेंस एक्ट को एक अमेंडमेंट भी पकड़े तो रादर बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि आपके जो पीरियोडिकल अमेंडमेंट्स आते हैं, फाइनेंस एक्ट नंबर 2 आता है जो कि इलेक्शन ईयर्स में आते हैं, उसके अलावा स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स आते हैं, टोला है जैसे, और अदर अमेंडमेंट्स, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते हैं। दिस हैज लेड टू ओवर 5000 अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज ऑन डेट। तो क्या हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना था उस समय के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बट जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होते गई, देयर हैज़ बीन इंट्रोडक्शंस। उस समय कोई सेक्शंस, जैसे अगर मैं बात करूं 80 CCD, 80 C, 80 C, मतलब 80 D, 80 DD, वो सब नहीं थे। इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस विद द एवोल्यूशन ऑफ द टाइम। क्या हुआ, अच्छा, आज के दिन सेक्शंस कितने हैं हमारे? एनीवन, आज के दिन कितने सेक्शंस हैं? बट दिखते तो 298 ही हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल सेक्शंस, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अल्फाबेट्स वाले जितने भी नंबर्स हैं, दैट रिप्रेजेंट्स अ सेक्शन, लाइक 80C, 80D, 115B, 115BB, 115BBE, 115BAB, BAC, BAD, BAE, ऑल दीज आर सेक्शंस। तो जैसे जैसे दरकार पड़ा वैसे वैसे इसको इंट्रोड्यूस करते गए। उस चक्कर में ये सेक्शंस को एक्चुअल में दिखने में 298 है, बट हैं ज़्यादा। अब इसमें से बहुत सारे सेक्शंस रिडंडेंट भी हो गए। एग्जाम्पल 80HH, जिसको इनकम लिंक्ड इंसेंटिव्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम लाया गया, एंड जब उसका पर्पस फुलफिल हो गया तो उसको सनसेट कर दिया गया। तो वैसे बहुत सारे रिडंडेंट सेक्शंस भी थे। से 5627B लाया गया, बाद में इनइफेक्टिव कर दिया गया, है ना? तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस थे विच वेर लाइंग इन द इनकम टैक्स एक्ट एंड वेर नॉट रेलिवेंट एज ऑन डेट। अच्छा, मतलब बहुत बार ऐसा होता था, आप पूरा सेक्शन पढ़ लिए, आप सेक्शन पढ़ के समझने गए, लास्ट में देखिए एक लाइन कि दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो आप बोले यार इतना तो पढ़ लिया, लास्ट में ये लिखा। तो मजाक में हम बोलते भी थे कि पहले लास्ट लाइन से स्टार्ट करो, रीड द फर्स्ट line and the last line and then read the balance. So such were the issues which were there in 1961. Second issue which was there was the complicacy of the language which was used. So it was basically the exercise to redraft the existing law in a simplified manner. Clear है? बट क्या सिर्फ रीड्राफ्ट किया गया है या इसके अलावा कुछ और चेंजेस भी लाए गए हैं जो हमें प्रोबेबली अननोटिस जा रहे हैं? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन अ वन रीडिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एज ऑफ नाउ? मे बी एक ओवरव्यू। अच्छा, चलिए 1961 में आते हैं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड द टैक्स ऑडिट सेशंस। अगर मेरा पीजीबीपी में यानी बिजनेस में मेरा टर्नओवर होता है 70 लाख रुपया, ठीक है, एंड माय प्रॉफिट इज से 3 लाख रुपीज, वेदर और नॉट टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड? ये तो होगा ना, टैक्स ऑडिट होगा। नहीं होगा सर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो बोलता है। आधे दिन कर रहे हैं, ये लोग मालूम ही नहीं है। हाँ सर, मैं बोला ना, इसलिए ये मेरा फेवरेट क्वेरी रहता है, जो आज तक भी थैंकफुली कुछ एक लोग हैं जो इसको हो गई नहीं। कंफ्यूजन में है। मैं आपको वापस से बता देता हूँ। रिटर्न होते ही सब बोलते हैं कि करना प्रॉफिट हो तो कभी नहीं होगा।
नहीं प्रॉफिट होगा तो भी लॉस में भी नहीं होगा। ना ना प्रॉफिट अरे टर्नओवर जब 1 करोड़ के नीचे है तो कुछ ही नहीं होगा। टर्नओवर 1 करोड़ नीचे खत्म ही हो गया। इनकम टैक्स एक्ट सर जो आप बोल रहे हैं ना, आज से 7 साल 8 साल 10 साल पहले तक वो होता था, जो 8% 6% से कम था तो ऑडिट होता था, करेक्ट। जिस साल में 44 ADA आया, उन्होंने वो सेक्शन को 44 AD की जगह ADA कर दिया, और सिमिलरली 44 AD के लिए कोई सेक्शन नहीं छोड़ा। क्लियर है? ऑल ऑफ अस आर ऑन सेम पेज। सबको बोल दिए नेक्स्ट ऑडिट नहीं करेंगे। सर अब ये क्या है ना कि ये अब मैं उसके, ठीक है ना, बट But if the turnover is up to 1 crore or less, in case of business, even if the profit is less than 6% or 8%, no audit is required. even if there is a loss still, तो बातें सर टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे कुछ भी हो, ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड। हाउएवर प्रोफेशन के केस में अगर 50 लाख के नीचे है और प्रॉफिट 50% के नीचे है तो ऑडिट इज रिक्वायर्ड। लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सिचुएशन चेंज हो गई है। अब जो बिजनेस में हमारा एग्जाम्पल था कि नहीं रिक्वायर्ड है, अब इसमें रिक्वायर्ड है। हाँ, सो उन्होंने जब लॉ ड्राफ्ट किया ना, कुछ एक ऐसी चीजें जो या तो अनइंटेंशनल थी या इंटेंशनल थी, उसको यहाँ पे करेक्ट किया गया है। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू स्पेसिफिक डिटेल्स बिकॉज अगर मैं ये, क्योंकि एक बहुत कॉमन पार्लेंस का एक सेक्शन था तो मैंने आपको बताया, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ना सर। 63 कंडीशन फॉर गेटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, ठीक है ना। पहला टेबल, मैं आऊंगा, ये टेबल्स शेड्यूल्स क्या है मैं सब चीज में आऊंगा, अभी खाली आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस इफ इज टोटल एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज, अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूड 5% से ज़्यादा, कैश में अगर नहीं है तो 10 करोड़ रुपया हो जाएगा, प्रोफेशन का 50 लाख रुपया हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, if the person is carrying on business or profession referred to in section 58 subsection 2 or 61 subsection 2, basically 44 AD और ADA। 58 और 61 क्या है? 44 AD और 44 ADA। and the profit and gains from such business or profession are claimed to be lower than the deemed profit as referred to in that said sections। यानी पहले जो खाली प्रोफेशन के लिए क्लॉज था, अब यहां पे वर्ड बिजनेस और प्रोफेशन दोनों को इंक्लूड कर दिया। तो जो एक कॉमन थ्योरी अगर आप लोग नॉर्मल सुन भी रहे होंगे कि भाई कुछ नहीं हुआ, ऐसे एक्ट को रिपीट किया गया है, खाली वर्ड्स चेंज किए गए हैं, अग्रीड। ओवरऑल कंसेप्ट या ओवरऑल निचोड़ या ओवरऑल थीम वही है, बट there are finer points. That's why I said welcome back to the tuition classes of Income Tax Act. There are lot of finer points. अच्छा, अब बहुत एक सिंपल सी लॉजिक है before I come to this tables and schedules. लोग बोलते हैं कि एक वर्ड है notwithstanding। आपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बहुत बार सुना होगा, notwithstanding anything contained in sections 28 टू सेक्शन 43C, ऐसा आपने बहुत जगह सुना होगा। अब यहां पे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वर्ड यूज किया गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ। नो सी, मैं तो वेरी हम्बली, आई एम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां पे मुझे इंग्लिश थोड़ी कम समझ में आती है, बट आई हैव बीन डिस्कसिंग दिस विद द स्कॉलर्स ऑफ इंग्लिश कि इन दोनों के बीच में द डिग्री ऑफ एक्सक्यूजल या डिग्री ऑफ फोर्स, जो सर ने करेक्टली कहा, आर डिफरेंट। नॉटविथस्टैंडिंग कम्स विथ अ ग्रेटर फोर्स एंड अ ग्रेटर एप्लीकेबिलिटी एज मीनिंग टू इररिस्पेक्टिव ऑफ। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब अगर मैं हिंदी भाषा में समझाऊं, उसको बिना तवज्जो दिए हुए, उसको बिना तवज्जो दिए हुए या बिना उस चीज को इवन मतलब व्हाट यू से, उसको इवन बिना नोटिस किए हुए, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ यानी उसके मतलब उसको ना छेड़ते हुए। समझ रहे हैं? बिना भी ये होगा। हाँ, उसको बिना छेड़ते हुए। But what will happen in case of contradictory clauses in this See, case? that's what
अगेन एक चीज समझिए, इट्स अ न्यू एक्ट, नया बच्चा हुआ है, नए दांत आए हैं, टीथिंग प्रोविजंस रहेंगे। अब एवरीवन इज कमिंग विद अ जनरल परसेप्शन कि ये दोनों सेम है, बट ऐसा कोई आएगा जो इसी वर्ड के ऊपर लेके एक लिटिगेशन क्रिएट करेगा, उस लिटिगेशन का एक कंसेंसुअल डिसीजन आएगा, प्रोबेबली यही डिसीजन आएगा कि दोनों वर्ड शुड बी ट्रीटेड एज सेम, बट दिस इज क्रिएटिंग अ स्कोप फॉर लिटिगेशन। बिकॉज आप लोग सब अग्री करेंगे कि इनकम टैक्स में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको लेके लिटिगेशंस हुए हैं और जो लिटिगेशंस में सेटल्ड क्लॉजेज है। नाउ वंस वी चेंज दोज वर्ड्स और चेंज दोज क्लॉजेज, लाइक इसका बहुत लाइव एग्जांपल है। पहले एक सेक्शन हुआ करता था 271(1)(c), अब क्या पेनल्टी का सेक्शन है आज के दिन मैं अभी 2025 में नहीं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आज क्या पेनल्टी का सेक्शन है? 270A है। तो आज के दिन भी आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग दोस चैलेंजेस, जो पेनल्टी प्रोविजंस 271(1)(c) के लिए लगते थे और जहां पे वहां पे एग्जेम्पशन दिया गया, पीस ऑफ माइंड बोल लीजिए जो भी, उसको आप इन टोटो अप्लाई करने जाते हैं 270A में, तो इट क्रिएट्स अ चैलेंज, correct? Though the theme of the both the sections to impose penalty for any misreporting, underreporting, the theme is same, but still the sections are or the case laws are not applied in toto. So same might happen here as well. I'm not saying it will happen, I'm saying it might happen. And I'm very upfront on this point that we as a consultant work for our clients. Like एक एडवोकेट की ना बहुत अच्छी एक सेंटेंस है, मैं उसको रिपीट करूंगा कि मैं अपने क्लाइंट को बिना जज किए हुए उसे बचाने की कोशिश पूरी तरीके से करता हूं, करेक्ट? सो फॉर अस ऑल्सो वी नीड टू फाइंड आउट दीज पॉइंट्स फॉर helping our client get out of the issue in which for which he has come to us, correct? So that's what I'm trying to emphasize upon. Clear on this? Now coming to what else has been done in this act. Tables, and a lot of tables has been created. Like सबसे एक टेबल मैंने आपको बताया, दूसरा टेबल मैं आपको बताता हूं, सेक्शन 58। सेक्शन 58 में अगर हम देखें, जैसे 44AB था या 44AD था, ADA था, AE था, उन सब को क्या किया ना, टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दिया गया है। स्पेसिफाइड बिजनेस और प्रोफेशन, असेसी, टोटल टर्नओवर, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन। सो एक टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, विच आइडियली इज एन इजी फॉर्मेट ऑफ रीडिंग, but again is a different format of reading. क्यों? मैं आपको बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, एक सेक्शन है फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, ठीक है ना, उसमें एक टेबल है पर्सन और किसका प्रोविजन फॉर टैक्स डिडक्टेड सोर्स, एन इंडिविजुअल बीइंग अ रेजिडेंट। मैं खाली आपको पढ़ के सुनाऊं जिस सब समझ में आए। इंटरेस्ट रेफर्ड टू इन सेक्शन 393 सबसेक्शन 1, टेबल सीरियल नंबर 5, 1, 2 and 3। सो इंटर रेफरेंसिंग ऑफ टेबल्स, पहले क्या इंटर रेफरेंसिंग ऑफ सेक्शंस था, तो जहां इंटर रेफरेंसिंग ऑफ सेक्शंस था आपके लिए उसे कोरिलेट करना थोड़ा इजी हो जाता था। अंडरस्टैंड? अगर मैं बोलूं टीडीएस रेफर टू इन सेक्शन 194C, आप इजीली कैच कर पाओगे। रादर मैं बोलूं टीडीएस रेफर टू इन टेबल 8 कॉलम नंबर 3, होगा 194C, क्योंकि अब उससे का कोई अलग सेक्शन नंबर तो है नहीं। अब वहां तो टेबल कर दिया 5 सेक्शंस का एक साथ, तो आपको कौन सा लाइन आइटम में कौन सा है वो याद करना होगा। अग्रीड, इवेंचुअली हो जाएगा।
नहीं बट इसमें भी एक चैलेंज यही है कि ऑल टेबल्स हैव स्टार्टिंग सीरियल 1 1 2 3 yes. तो वो एक इशू आएगा कि हम लोग अगर अलग अलग सीक्वेंसिंग भी रहता तो एक इजी होता है रिकॉलिंग में, लेकिन हर टेबल में ही 1 2 3 4 5 रहेगा। लाइक मैं बहुत सिंपल सा चीज आपको एक और समझाता हूं। आपका एग्जाम्शन का पहले कौन सा सेक्शन था? 10 था सर, ठीक है ना। अब उसका सेक्शन का मैं पहले आपको हेडिंग पढ़ता हूं फिर उसके अंदर लेके जाता हूं। अब उसका सेक्शन 11 हो गया है, इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, ठीक है ना। मैं अब उसको पढ़ के सुनाता हूं आपको। पहले आपको याद होगा कितना था, 10(1) से लेके 10(23) सी इटसेल्फ हैड सो मेनी प्रोवाइजोज, ठीक है ना। अब मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं। हाँ हाँ, टेबल मतलब टेबल्स आए। In computing the total income of any person for a tax year under this act, any income enumerated in schedules 2, 3, 4, 5 and 6 shall not be included subject to fulfillment of conditions specified therein. And फिर है, the persons enumerated in schedule 7 shall subject to fulfillment of the conditions specified therein shall not be chargeable to tax for the total income of for a tax year. बेसिकली यहां पे सिर्फ ये 2 या 3 लाइंस लिख के एवरीथिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दी शेड्यूल्स। थैंकफुली सर मैं जीएसटी नहीं पढ़ा था। ठीक है ना सर। अब मैं आपको शेड्यूल्स पढ़ के सुनाता हूं क्या क्या है। So there are total of 16 शेड्यूल्स, ठीक है ना। तो अभी हम जो रेफर कर रहे हैं वो शेड्यूल 2 से लेके शेड्यूल 7 तक है, ठीक है ना, जो कि एग्जेम्प्ट इनकम का है। इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एलिजिबल पर्संस, इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एलिजिबल नॉन रेसिडेंट्स फॉरेन कंपनीज या अदर सच पर्संस। बेसिकली 2 to 6 है कि कौन सा इनकम इंक्लूडेड नहीं है, और 7 है जो पर्संस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। क्लियर है? तो ऐसे करके ये टेबल्स डाल दिया गया है। सिमिलरली आपका डिडक्शंस का टेबल है, सब चीज का टेबल्स कर दिया गया है। एक सेकंड में आपको एक और चीज दिखा। अच्छा, देयर इज अनदर डिफरेंस। जो सेक्शन के बीच में लिखा गया है दैट हैज बीन रेफर्ड टू एज अ टेबल, और जो सेक्शंस के एंड में लिखा गया है दैट हैज बीन रेफर्ड टू एज शेड्यूल। तो किसी सेक्शन में अगर टेबल बोला जा रहा है तो आपको सेक्शन के अंदर में मिलेगा, और शेड्यूल बोला जा रहा है तो शेड्यूल सेक्शन के ऑल सेक्शंस के लास्ट में शेड्यूल्स मिलेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी व्हाट दे हैव यूज्ड। लाइक टीसीएस का अगेन उन्होंने पूरा टेबल बना दिया, जो 206C का था सारा पॉइंट्स वो सारा, और उसके बाद का जो रेमिटेंस और ये सब जो सारा था सबको एक टेबल में बना दिया टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करके, सेक्शन 394, ठीक है ना। हाँ, द गुड थिंग विच हैज बीन डन इज दैट दे हैव कैटेगराइज्ड ऑल दी सेक्शंस एंड रीग्रुप्ड देम। पहले क्या था, पहले जैसे अगर हम बात करें चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो चैरिटेबल ट्रस्ट के सारे सेक्शंस बिखरे हुए थे, है ना। अब उन्होंने वो सारे सेक्शंस को एक जगह कर दिया, जिसमें आपको एग्जांपल देता हूं। बिफोर आई कम टू दैट, जैसे सेक्शन 393 है टीडीएस के लिए,
अब 193, 194, 194 ए बी बी ए बी बी सी डी डी ए से लेके 197 ए तक ये सबको एक ही सेक्शन में डाल दिया गया है बाय द फॉर्म ऑफ वन टेबल। तो पहले जो आप सेक्शन वाइज याद करते थे, अब आपको टेबल का सीरियल नंबर याद करना होगा। ठीक है ना? अब जैसे अगर हम चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करें तो सेक्शन 11, 12, 13, 115 बीबीसी बीबीआई 2 सबसेक्शन 15, 12A और 12A बी, ये जितने सेक्शंस हैं 115 टीडी टीई टीएफ, इन सब को एक जगह जाके मर्ज कर दिया है। यानी चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने सेक्शंस थे जो अलग अलग जगह बिखरे हुए थे, 80G ये सब उन सब को लाके एक चैप्टर में डाल दिया। क्लियर? तो वो आपके लिए रेफरेंस पर्पस के लिए इजी हो जाएगा कि एक पोर्शन में आपको सब चीजें मिल जाएंगी rather than गोइंग हेवेयर। बट उसके अंदर के जो इंटीग्रल इश्यूज है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। क्लियर ऑन दिस? अच्छा, नाउ कमिंग टू द 2 अदर पार्ट्स। तो ओवरव्यू देखिए, मैंने आपको बहुत ब्रीफली ओवरव्यू दिया है, बिकॉज अगेन दिस ओवरव्यू इज समथिंग आई एम नॉट गोइंग कि कितने वर्ड्स कम हुए, कितने पैराग्राफ्स कम हुए, वो सब चीज़ें आई डोंट थिंक इज मटीरियल फॉर अस। कि वर्ड्स आधे हो गए ठीक है, बट 45,000 से 28,000 वर्ड्स हुए, आई डोंट थिंक इज मटीरियल फॉर अस टू डिस्कस। अब बोलेंगे तो वो भी है इसमें डेटा, बिकॉज दैट इज इमटीरियल। पॉइंट बीइंग इट हैज बीन रीड्राफ्टेड, रीग्रुप्ड एंड रीस्ट्रक्चर्ड। आजकल RRR चल रहा है तो मैंने भी 3 R बना दिए। रीड्राफ्टेड, रीग्रुप्ड, रीस्ट्रक्चर्ड। ठीक है ना? रीड्राफ्टेड क्यों? क्योंकि अच्छा, ये दिस इज वन गुड थिंग विच हैज हैपेंड। पहले बहुत ज्यादा घुमा के चीजों को बोला जाता था, अब सिंपल वे में बोला जाता है। ठीक है ना? उसका एग्जाम्पल लेते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस से। ठीक है ना? मैं इसको खोल के आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दोनों जब मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको उसका डिफरेंस समझ में आएगा। For the purposes of this act, an individual is said to be, ये मैं 1961 पढ़ा हूँ अभी। For the purposes of this act, an individual is said to be the resident in India in any previous year if he in India in that year for a period or periods amounting in all to 182 days or more, or having within the 4 years preceding that year been in India for a period or periods amounting in all to 365 days or more is in India for a period or periods amounting in all to 60 days or more in that year. समझ में आया? बेसिकली 182 डेज या 60 प्लस 365 डेज, यही चीज तो बोलना चाह रहा है। बट इसमें पीरियड और पीरियड्स, अमाउंटिंग टू ऑल, ये सब चीजें करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया गया। अब इसको यहां पे कैसे किया गया वो मैं आपको सुनाता हूं। A person shall be resident in India in a tax year if he is in India for a total period of 182 days in that tax year, or is in India cumulatively for 60 days or more in that year and has been in India cumulative for 365 days or more in 4 preceding years. सिंपल कर दिया गया? इसमें एंड यूज किया है, नहीं और है और के बाद एंड यूज किया है। हाँ, पहले भी एंड ही था, 60 एंड 365 पहले भी था। नहीं 60 एंड 365 तो हमेशा से एंड था, एंड ही था हमेशा से एंड था। 182 और उसके बीच में और है ना, 182 एंड 60 और 365 और है ना। नहीं 182 और 60 एंड 365 वही है। एसेंस सेम है, लैंग्वेज डिफरेंट। जहाँ एसेंस डिफरेंट था मैंने आपको वो टैक्स ऑडिट का मतलब समझाया, यहाँ पे एसेंस सेम है, लैंग्वेज डिफरेंट है, लैंग्वेज सिंप्लीफाइड है। इसका आगे आके और मैं आपको समझाता हूँ। एसएससी हम्म, ऑप्शन एसएससी के पास चूज करने का।
नहीं, इन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो गया तो आप रेसिडेंट हो गए, ऑप्शन नहीं है। इन दोनों में से कोई भी एक क्लॉज सेटिस्फाई, और मतलब है दोनों में से कोई एक क्लॉज सेटिस्फाई हो गया, देन यू विल बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट। देयर इज नो ऑप्शन, देयर वाज नेवर एन ऑप्शन। अगर आप इस साल में 182 डेज नहीं है और 60 डेज से ज्यादा है, तो आपको चेक करना आप लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज से ज्यादा है कि नहीं है। अगर हैं तो आप ऑटोमेटिक फिर भी रेसिडेंट है। हाँ हाँ, ये नहीं है कि आप ऑप्शन चूज किए कि 182 से कम है तो 360 तो हम नॉन रेजिडेंट मान लेंगे। दोनों टेस्ट सेटिस्फाई करना होगा। दोनों में कम है, आप 182 से भी कम है और 60 से भी कम है, तब तो वैसे ही हो गए। और 182 और 60 के बीच में है तो आपको अगर 365 से कम है तो नॉन रेसिडेंट है। 4 years, preceding 4 years. Clear on this? So this is the language. अच्छा, अब एक और चीज सुनिए। नेक्स्ट क्लॉज जो 1961 का एक्ट था, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु लीव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप एज डिफाइंड इन क्लॉज दिस फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, the provisions of subclause C shall apply in relation to that year as if the word 60 days occurring therein the words 182 days has been substituted. What is the basic meaning? Clause 2 जो 60 वाला है वो applicable नहीं है, क्योंकि 182 days है तो पहला क्लॉज तो ऑटोमेटिक ही आ गया। आप बोल रहे हैं कि दूसरा क्लॉज में 60 की जगह 182 माना जाएगा, तो फिर क्लॉज क्या हो गया? 182 और 182 प्लस 365, तब तो दूसरा क्लॉज रिडंडेंट ही हो गया ना बेसिकली। बट उसको इस तरीका से लिखा गया। यहां पे सिंपल क्या लिखा है? द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 क्लॉज बी शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ इंडिविजुअल हु सिटीजन ऑफ इंडिया लिव्स इन इंडिया इन एनी टैक्स ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ द इंडियन शिप। सिंप्लीफाइड, वो 60 को 182 बनाइए, फिर ऑटोमेटिक अज्यूम करिए कि वो नहीं एप्लीकेबल है। इससे अच्छा सिंपल लिख दिया कि वो सेक्शन सबसेक्शन 260 वाला एप्लीकेबल ही नहीं है। क्लियर ऑन दिस? ईज ऑफ रीडिंग समझ में आ रहा है आपको? इट इज बेसिकली अ शिफ्ट फ्रॉम अ लीगल लैंग्वेज टू अ मोर रीडेबल लैंग्वेज। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? गुड, चलिए। So basic funda of the overview is clear why this has been done. Redundant sections को हटाने के लिए, जहाँ जहाँ पे चीज़ें फैली हुई थी अलग अलग जगहों पे, उसको मर्ज करके रीग्रुप करने के लिए, लैंग्वेज को रीडिफाइन करके फॉर अ लेमैन थोड़ा इजी करने के लिए, जो हिंड्रेंसेस रिस्ट्रिक्शंस आएंगी वो हमने डिस्कस कर लिए। बट यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई किस लिए किया गया। हाँ, उसमें वर्ड्स भी कम हो गए, उसमें लैंग्वेजेस, बहुत चीज़ों को शेड्यूल में भी डाल दिया गया। वंस वी गेट अकस्टम टू दोज शेड्यूल्स एंड टेबल्स इट विल बी कंपेरेटिवली इजी। अच्छा, ये तो दो आई शुडंट स्पीक बिकॉज ये रिकॉर्डिंग और इसको कटवा देना, बट हम तो मजाक में बच्चों को ये भी बोलते हैं कि अब चीटिंग भी इजी हो गई, अब आपको एक ही टेबल में सब कुछ मिल जा रहा है। सो बट दैट्स जोक्स असाइड, overall concept of framework, how it has been structured is clear. Now the concept of tax year is clear. Word, अच्छा, assessment year की जगह word का क्या use किया गया है? The financial year succeeding the tax year. Assessment year की जगह word क्या use किया गया? The financial year succeeding the tax year. So यहाँ पे आपको दो words बार बार सुनने मिलेंगे, tax year and financial year. Financial year we all know 1st April to 31st March. Tax year we have already discussed. Clear? There is no concept of assessment year. There is no concept of previous year. Clear on this? Now coming to the definition section. एक हमको लगता है कि explanations और proviso जो समूचा हटा दिया वो आप शायद अभी हाँ, नहीं वो तो मैं बता रहा हूँ, मैं अभी इस डेफिनेशन में जब आऊँगा तो बताऊँगा। खैर सर ने जब ये डिस्कस किया है तो मैं उसी से पहले स्टार्ट करता हूँ। जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि 5000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स जब आए तो अमेंडमेंट्स लाने के तरीके क्या थे? बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस इंट्रोड्यूस कर देने या बहुत सारे प्रोवाइजोज इंट्रोड्यूस कर देने।
जैसे मैंने कहा सेक्शन 1023C itself had more than 20 provisos. तो क्या हो गया था ना, वो प्रोवाइजो के बाद प्रोवाइजो, उसके बाद वो प्रोवाइजो लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रोवाइजो कब एप्लीकेबल नहीं होगा या कब एप्लीकेबल होगा. व्हाट इज प्रोवाइजो? प्रोवाइजो इज बेसिकली एन एडिशनल कंडीशन या एक सब्जेक्ट टू रिमार्क. एक्सप्लेनेशन इज बेसिकली डेफिनेशन. तो अब क्या किया गया, वो एक्सप्लेनेशंस को उठा के डेफिनेशंस में डाल दिया गया है. प्रोवाइजोस को हटा के उसी सेक्शन का सब सेक्शन या क्लॉज बना दिया गया है. तो क्या अब एक्सप्लेनेशन और प्रोवाइजोस नहीं आएंगे? आएंगे. ये बेसिकली हमने अभी तक की चीजों को बेस आउट कर दिया है. जैसे पहले आपको याद होगा हमारा जो वो था कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, पहले 1981 चलता था. तो 1981 तक चला, फिर उसको बेस आउट कर दिया गया 2001 से. तो 2001 से फिर नया आने लग गया. तो वैसे 1961 आया, उसमें अमेंडमेंट्स आते गए. आज तक के जो अमेंडमेंट्स थे या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स थे, वो सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए एक बेस एक्ट वापिस से बना दिया गया. हाउसोएवर, इफ आई हैव टू गिव एन ओपिनियन, आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि अगर आपको इतनी मेहनत करनी थी तो कुछ एक सेक्शंस जो थे उसको आप और कंसिडर करके चेंज कर सकते थे, rather than just doing this exercise for complete redrafting. It could have been done in a more conscious way and could have been done in a more affirmative way. like बहुत सिंपल है. आज के दिन में न्यू इनकम टैक्स regime as far as individuals are concerned, what new income tax regime में you have a rebate up till 12 lakh rupees, whereas in old regime you have a rebate up till 5 lakh rupees, sir, no 7 lakh. So in all, or rather in most of the possibilities, new income tax regime is favorable for an individual vis-a-vis the old regime. Why I am using most? Because there are still certain cases जहाँ पे कि old regime beneficial होगी. But when a law is made, it is made for a larger utility. So if this old regime, जहाँ आप उसको sunset करना ही चाह रहे हो, जहाँ पे आप सारे बेनिफिट्स जो भी एक्ट में ला रहे हो वो सब न्यू रेजिम के लिए ला रहे हो, तो आप ओल्ड रेजिम को हटा देते. क्यों नहीं हटाया, हम उसमें नहीं जा रहे हैं. हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, मुझे भी पता है, हम उसमें नहीं जा रहे. अच्छा, असीम इज हेयर, सो वी वेलकम असीम. हाँ, आई नो सर, आई नो. मैं उस रीजंस में नहीं जा रहा बिकॉज देन दैट विल बी अ, हाँ दैट इज, बट द पॉइंट इज दैट कुड हैव बीन डन. It would have at least been done away with at least 30 of the sections, है ना? So these are the reasons, these are the frameworks which could have been done in a better way. Done. Talking about the definitions. So जो अभी हम डिस्कस करते कि बहुत जगहों पे definitions distributed थे, जैसे जैसे definition का requirement आया, हर एक सेक्शन में वो definition को introduce कर दिया गया. अब जब इसको रीड्राफ्टिंग एक्सरसाइज की गई, हर एक जगह से वो डेफिनेशन को पुल करके इट हैज बीन कंसोलिडेटेड इन द डेफिनेशन सेक्शन इटसेल्फ. द डेफिनेशन सेक्शन जो पहले 2 था, अभी भी वो 2 है, बट पहले क्योंकि 1023C 1 10 1 1A 2 1 1A ऐसे करके थे, अब उसको सीरियली नंबर्ड कर दिया गया है 1 से लेके 112. सो दे आर बेसिकली 112 डेफिनेशंस. ठीक है, उसका मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ. फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 विच इज द डेफिनेशन ऑफ एन अकाउंटेंट. तो पहले जैसे 44AB में अकाउंटेंट डिफाइंड था, 92F में डिफाइंड था, 115JF एंड ऑल दीज सेक्शंस हैड द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंट. नाउ उन सब जगहों से डेफिनेशन को लेके एक कॉमन जगह पे डाल दिया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 1. ठीक है ना? IFSC. Again, IFSC was defined in various sections. जहाँ जहाँ पे IFSC का रेफरेंस था, वहाँ पे जाके IFSC को डिफाइन कर दिया गया था. So this was leading to duplication, multiplication of a single definition. तो उन सब जगह से IFSC के डेफिनेशन को
कंसोलिडेट किया गया और जाके डेफिनेशन वाले सेक्शन में पटक दिया गया. क्लियर ऑन दिस? यहाँ तो 112 को डेफिनेशन दिया हुआ और एक जगह कोई 40 तो इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है. वो लास्ट में है सर. हाँ, तो ये इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन में डिफरेंस. मैं आपको इंटरप्रिटेशन में आऊंगा, मैं आपको सब पढ़ूंगा इंटरप्रिटेशन क्या है. पहले अपने डेफिनेशंस को कवर कर लेते हैं सर, फिर इंटरप्रिटेशन में आते हैं. जैसे अगेन कोऑपरेटिव बैंक सेक्शन 36, 43 बी, डी, डीबी, इन सब 269 एसटी, टी, इन सब में दिया हुआ था. उसको अगेन लाके यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 कर दिया गया. या रैदर, अच्छा एक चीज और बता दूं, सेक्शन 2 में कोई भी सबसेक्शन नहीं होता है बाय लॉजिक. इट इज कॉल्ड क्लॉज. आइडियली आप जहां पे नंबर्स देखेंगे ट्रेडिशनली इट इज कॉल्ड सबसेक्शंस, बट यहां पे बिकॉज ऑफ इट इज अ इंडिपेंडेंट डेफिनेशन इन इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड सेक्शन 2 क्लॉज 31. दैट्स हाउ to my understanding it should be read. Again very subjective, I'm not going into that discussion. So अब individual definitions की हम बात करें तो the essence again which we have discussed has been there. IFSCs का हमने बात कर लिया. So बहुत सारे definitions, जैसे अच्छा कुछ एक definitions को हटा भी दिया गया जिसका आज के दिन में requirement नहीं थी. जैसे पहले एक definition था, मतलब कुछ एक नए डेफिनेशन भी लाए गए, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नोटिफिकेशन 2 सबसेक्शन 73, वैसे करके बहुत सारे नए डेफिनेशंस भी इंट्रोड्यूस किए गए जो पहले कहीं पे भी नहीं थे, बट विच वाज रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लेन्ड. ठीक है ना? तो वैसे करके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं. द लास्ट डेफिनेशन बीइंग जीरो कूपन बॉन्ड. वर्चुअल डिजिटल एसेट है, वैल्यूएशन ऑफिसर है, ट्रांसफर्स है. So all those have been informed. इस डेफिनेशन का अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, इसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया गया है, तो वो डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू अ रिलेटिव. रिलेटिव का क्या डेफिनेशन था पहले, इफ एनीवन? नहीं 56 में था, इसमें भी था, 241 पहले भी था, बट उसमें चेंज क्या किया गया है? थोड़ा बढ़ा दिया, इन-लॉज को ऐड कर दिया. अच्छा सर वो भी, अच्छा अपने बात तो कर रहे हैं बढ़ा दिया गया है, बट एक्चुअली वो पहले भी डीम था कि मटरनल साइड इंक्लूडेड है. बट क्या हुआ, अब जो असीम ने कहा वेरी करेक्टली क्लैरिफाई कर दिया गया. अब तो अगेन मैंने क्या कहा कि जो बहुत सारे जुडिशियल प्रेसिडेंट से क्लैरिफाइड था, सेटल्ड था, इम्प्लाइड था, उसको अब एक्सप्रेसली रिटन फॉर्मेट में ला दिया गया. तो अब जो बहुत लोग ये अगेन बिकॉज इट हैज़ बीन डूइंग लार्जर राउंड ऑफ डिस्कशंस कि अच्छा मटरनल साइड को अब इंक्लूड कर दिया गया है, लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट्स. इट इज़ नॉट न्यू, इट वाज ऑलरेडी देयर, not in an expressly written format. Now it has been done in an expressly written format. So वही चीज़ें changes है, otherwise definitions have been borrowed from the 61 Act. कुछ एक जगहों पे मैंने कहा changes आए हैं, जैसे notification वाला definition हो गया, और भी definitions हैं. कुछ एक जगहों पे अलग अलग sections में definition थे, उसको cumulate करके यहाँ पे डाल दिया गया है. Clear on definitions? Now coming to the point of chargeability. तो पहले chargeability का कौन सा सेक्शन था सर? नहीं 9 तो नहीं था, 9 तो डीम टू अक्रूअल इन इंडिया था. सेक्शन 4 था, ठीक है ना, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स. वो अभी भी 4 है, तो मैं उसको पढ़ता हूं आपके लिए. Very similar to what has been written in the earlier section, where any central act enacts the income tax shall be charged for any tax year. At any rate or rates, income tax for such tax year shall be charged at that rate or those rates in accordance with subject to the provisions of this act. The charge of income tax shall be on the total income of the tax year of every person as per the provisions of this act.
shall also include additional income tax by whatever name called, charge in respect of income of a period other than the tax year, it shall, if it is specifically included, shall be charged accordingly. And income shall be deducted, collected at source or paid in advance as provided in the act. Similar to what was written, just made in a simple language. ठीक है? मैं बिफोर आई ओपन, मैं सर ने क्योंकि वो पॉइंट इंटरप्रिटेशन वाला बोला था, मैं उस इंटरप्रिटेशन वाले पॉइंट्स को रीड कर देता हूँ, रादर डिस्कस कर लेता हूँ. सर आपने पढ़ा फ्लैट? नहीं सर, पढ़ा मतलब जैसे कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे यूज़ आता है, मैं जनरली क्या कर रहा हूँ सर, क्या करता हूँ, whenever I refer to a section in Income Tax Act 1961, I make a point कि मैं उसका सिमिलर सेक्शन को यहाँ पे भी रेफर करूँ. लिटिगेशन बढ़ेगा घटेगा? सर मैंने इसका जवाब दिया आपको. The common understanding is it is a basically a reprint or a redraft version. But कुछ एक जगहों पे because of use of different kind of words, litigation is likely to arise. What I am using the word is likely to arise. जैसे मैटरनल केस में दे दिया तो लिटिगेशन कम हो गया. वो जगहों पे कम भी होगा, बट वो जगहों पे इसलिए कम मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो प्रोबेबली सेटल्ड इश्यूज थे. जो सेटल्ड इश्यूज है ना, उसी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. जो आज के दिन भी डूबियस इश्यूज है ना, उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है. जो सेटल्ड इश्यूज है उसको ही इंक्लूड किया गया है. हमारे स्टूडेंट लोग को बहुत प्रॉब्लम है जो इस साल पास किया नेक्स्ट ईयर. सो मैंने तो बोला ना कि जो स्टूडेंट्स आज के दिन में अब नया पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो एग्जाम देंगे तो पुराना एग्जाम देंगे. नहीं जो एग्जाम देंगे वो पुराना देंगे, मैं बोला जो अब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे उनके लिए ठीक है. जीएसटी में भी यही हुआ था. जीएसटी में भी यही हुआ था. हाँ. कंपनी उनको समझ में आ गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को खुशबू देना ये पता नहीं कौन सी चीज है. क्लाइंट को समझे नहीं समझे, ये लोग क्लाइंट समझा रहे. सर आप जो इंटरप्रिटेशंस बोल रहे हैं ना, बेसिकली जो सब्जेक्ट इंडेक्स में दिए हुए हैं, वो बेसिकली सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए है कि अकाउंटेंट का इंटरप्रिटेशन वो होगा जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में. सो इट्स बेसिकली वर्किंग एज अ रेफरेंस क्लॉज ओनली. मेन डेफिनेशंस ही हैं जो 112 है. इंटरप्रिटेशन का मतलब और डेफिनेशन का मतलब मीनिंग में सबको लगता है कि मोर और लेस सेम. और आपको रेफर डेफिनेशन को ही करना है. इंटरप्रिटेशन इज जस्ट लिंकिंग यू टू दी डेफिनेशंस. और वर्डिंग्स भी देखिए उसी टाइप का है. हाँ. मींस इंक्लूड्स ये. हाँ, ये तो स्टार्टिंग है, उसके पीछे वैसे ही है, सेम ही है सर. बिकॉज अल्टीमेटली डेफिनेशन इज समथिंग विच इज इंक्लूडेड इन द लॉ एंड नीड्स टू बी रेफर्ड टू. अच्छा, इसके बाद में आई एम नॉट श्योर इफ ये स्पेसिफिकली कहीं पे इंक्लूडेड है क्या, ट्रांजिशन प्रोविजंस. बिकॉज आई थिंक वो इंक्लूडेड होगा, बिकॉज प्रोविजन ऐसे इंक्लूडेड है, वी कैन हैव मतलब अगर आई डोंट वांट, बिकॉज वो कंफ्यूजन हो जाएगा. सो इसके जगह अपने क्या करते हैं, लेट्स ओपन द राउंड. अगर कुछ नहीं है तो अपने उसको एक बार टच अपॉन कर लेंगे. तो सर विथ रिस्पेक्ट टू द लिमिटेड थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, या अदरवाइज ऑल्सो अगर आपको कोई भी डिस्कशन है, सो असीम इज ऑल्सो हेयर एंड आई एम ऑल्सो देयर एंड वी ऑल कैन हैव अ डिस्कशन. एनी थॉट्स और ऑब्जर्वेशंस विथ रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट 2025 or any query which you have in mind as of now? सर ये सबके डेफिनेशन जो दिए हैं सर ये रिलेटिव, तो हर सेक्शन में एक ही है ना, हर सेक्शन के अलग अलग डेफिनेशन है. मैं नहीं समझा सर क्वेरी. जैसे रिलेटिव ये रिलेटिव है. हाँ. 46 का अलग है और भी सेक्शन में रिलेटिव का सब जगह एक ही रहेगा ना सब. नहीं, अब क्योंकि उसको डेफिनेशन सेक्शन में डाल दिया गया, until unless expressly changed in any other section, जो कि नहीं है, तो रिलेटिव का डेफिनेशन रिमेन्स द सेम. हम रिलेटिव का माने और भी जो भी चीज़ हाँ हाँ हाँ, एक ही है, मानेंगे उसके लिए अलग डेफिनेशन, उसके लिए एक ही है, एक ही एक ही है, एक ही है, सब जगह एक ही है. एक ही है. डोनेशन के लिए डोनेशन गिफ्ट के लिए अलग डेफिनेशन था, 48 के लिए अलग
डेफिनेशन था वो उस हिसाब से वो अब वो रिलेटिव का डेफिनेशन एक कर दिया गया सर। ऑल माने मैं वही बता रहा हूँ, जब आपको उसे कॉमन डेफिनेशन के पूल में डाल दिया जाता है, दैट डेफिनेशन बिकम्स द मास्टर डेफिनेशन फॉर ऑल द सेक्शंस until unless exclusion is provided in a specific section, it becomes the master definition applicable to all the sections. और कुछ सर? हाँ सर, सही है। और तो फर्स्ट ईयर में सभी कोई प्लेसमेंट हो गया ये करवा शेड्यूल्स में एक सेकेंड सर। Schedule 3, serial number? ये मेरे लिए भी ऑब्जर्वेशन है, दो आई हैड नॉट रेड दिस। एक मिनट दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है सर, ये बेसिकली उन्होंने क्या किया है, कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शंस को उन्होंने यहाँ पे नहीं डाल के इनकम टैक्स एक्ट से 1961 से ही रेफर करने बोला है। ये जब आप ट्रांजिशन प्रोविजंस भी पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि सर्टेन पोर्शंस ऑफ द एक्ट कंटिन्यूज टू अप्लाई इन दिस केस एज एप्लीकेबल इन दिस एक्ट। हाँ, जैसे इसमें लिखा जो आपने करेक्टली बताया, एनी इनकम फॉलिंग अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 2C और 15 4(1) और 19A और 40 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एज प्रोवाइडेड देयरइन। बैलेंस के लिए उन्होंने जो जो यहाँ पे स्पेसिफिक लिखना था, बैलेंस के लिए 3 4 5 के लिए उन्होंने वैसे ही किया है। चलिए मैं एक बार ट्रांजिशन प्रोविजंस पढ़ देता हूँ। So the transition provisions is nothing but section 536, which is repeal and savings. मैं उसको डिटेल में ना पढ़ के आपको एक एसेंस बता देता हूँ, डिटेल में डिस्कस होगा। वो बोलता है कि जो चीज़ आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अलाउड थी, से फॉर एग्जांपल लॉसेस, से फॉर एग्जांपल मैट क्रेडिट, वो सब चीज़ कंटिन्यू टू बी अलाउड रहेगी इन इनकम टैक्स एक्ट 2025 एज इफ वाज अलाउड इन 1961। ठीक है। दूसरा, नथिंग शैल अफेक्ट द राइट विच वॉज क्रिएटेड अंडर द ओल्ड एक्ट व्हेन द न्यू एक्ट कम्स इनटू एनैक्टमेंट। ठीक है, लाइक रिफंड्स और एनीथिंग एल्स, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। थर्ड चीज है कि अगर उसमें कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन वैलिड। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स है ऐसे ही
सेट ऑफ लॉसेस, 47 का जो ट्रांसफ़र है, जो एग्जेम्पशंस वाले हैं, जो वहाँ एग्जाम किए गए, दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन एग्जाम्ड। जो प्रोसीडिंग्स मान लीजिए कि 26 तक ओल्ड एक्ट में होती है, दैट विल कंटिन्यू अंडर द ओल्ड एक्ट। जो ओल्ड एक्ट में इनिशिएट हो गई वो ओल्ड एक्ट में कंटिन्यू होंगी। अब जो 1 अप्रैल 26 के बाद इनिशिएट होनी है वो तो न्यू एक्ट में ही होनी होंगी। 1/4/26 के बाद जो खोली अगर प्रीवियस उस साल की खुली है तो पुराने एक्ट में होगी सर। नहीं सर, 2020 की अगर खुली है 26 के बाद 5 साल खुल सकती है तो वो पुराने एक्ट में होगी। नहीं उस सर, साल की। नहीं सर, Clear है सर? तो उस साल का ये है सर, नहीं उस साल का है, ठीक है। पुराने एक्ट में आएगा सर। नहीं नहीं, आपका एक्ट रेफरेंस उस पुराने एक्ट को ही लेना होगा। हाँ तो उसी से नहीं, आप जो बोल रहे हैं रेफरेंस पुराने एक्ट का लेना है, प्रोविजंस पुराने एक्ट का एप्लीकेबल होगा, वो सब करेक्ट है। नोटिस किस सेक्शन में आएगी? नोटिस न्यू सेक्शन में आएगी। आप जो बोल रहे हैं ना, आप अपनी जगह सही है। अगर मेरा सपोज करिए नोटिस आया 80G का डिसअलाउंस के लिए, तो 80G पुराने वाले एक्ट का ही रेफरेंस होगा। वो आप सही बोल रहे हैं, मैं उस चीज को डिस्प्यूट ही नहीं कर रहा। नोटिस 148 में नहीं आएगी, अब नोटिस नए सेक्शन में आएगी। हाँ, बस आप जो बोल वो क्लैरिटी। तो जो सर बोल रहे, जो हम बोल रहे, बेसिकली वी आर ऑन द सेम पेज। एक्ट का रेफरेंस, क्योंकि मेरा पीरियड वाज कवर्ड अंडर द ओल्ड एक्ट, मेरा एप्लीकेबल एक्ट पुराना ही रहेगा। मेरा जो भी अलाउबिलिटी, डिसअलाउबिलिटी, एग्जेम्पशन, पेनल्टी, सब ओल्ड एक्ट का रेफरेंस रहेगा। लेकिन जहां पे भी नोटिस इशू करना है या जो भी प्रोसीड्योर करने हैं, दैट विल बी डन अंडर द सेक्शंस ऑफ द न्यू एक्ट। So what if timelines get increased in the new act? आपके लिए एप्लीकेबल उस साल के लिए तो ओल्ड एक्ट ही है। नहीं, आप बोले नए नए एक्ट में जब नोटिस इशू भी होता है, इट कैन ओनली बी बेनिफिशियल टू यू। अगर हम नए एक्ट में बोल देते हैं 10 साल और पुराने एक्ट में उस साल का पीरियड का कवरेज 5 ही साल था, सर नए एक्ट में कितना साल है? वही 5 ही साल है। सेम है। 5 ही। इसमें अच्छा आपको सुनाई दे रहा होगा 4 और 6। हाँ, वो खाली इंक्रीज हुआ है, पर वो क्योंकि वर्ड पहले क्या था। अच्छा, ये अच्छा आपने बताया, ये भी मैं बता देता हूँ, दो ये असेसमेंट में कवर्ड हो जाएगा। वो ये था 3 years and 5 years फ्रॉम एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। दिस इज 4 years and 6 years फ्रॉम एंड ऑफ द टैक्स ईयर। तो अल्टीमेटली पीरियड रिमेन्स द सेम। वो बढ़ा हुआ टाइम इसलिए दिख रहा है क्योंकि पहले रेफरेंस असेसमेंट ईयर का था, अब रेफरेंस टैक्स ईयर का है। नहीं, 6 साल हो गया। हाँ, तो ये बहुत आया था क्वेरी कि ये 4 और 6 हो गया, नहीं 1-1 साल बढ़ा दिया। नहीं, वो सेम है। चलिए ठीक। लगता है कि अब ये रेट ऑफ टैक्सेस शायद वो कोई एक्ट में शायद नहीं डाल दिया ना, इमीडिएटली मेरे को रेफर नहीं नहीं नहीं, वो डाल भी नहीं सकता ना सर, वो एक्ट में डालने से। चेंज कर ही नहीं पाएगा। हाँ, वो दैट विल बी अ इशू। वो टेबल में करने से क्या उनको बार-बार चले, with this Asim is here and I think we all are eager to hear him as well. So thank you so much for this patient hearing and thank you so much for coming in such good numbers, which shows कि हमारा इस एक्ट को लेके क्या स्टडी पैटर्न रहेगा और क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। सो कुडोज टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि ये 4 दिन का जब सेशन हो, at the end we get to have a more comfortable view about this new act. So with this, thank you so much. I rest my discussion here. नहीं, हमने पूरा नहीं, मैक्सिमम मतलब एक महीना का सेशन नहीं होता है। सर अभी भी मैं, हाँ नहीं, आई एम लिविंग। अभी मैं बताता हूँ, मेरे को नहीं याद है कहाँ पे हो रहा था, बट दैट सेशन एक्चुअली रैन फॉर 4 or 5 months. यस, एवरी थर्ड डे या फोर्थ डे वो सेशन हो रहे थे। इनकम टैक्स एक्ट में मैंने भी उसमें 1-2 सेशन दिए थे, शायद ऑल इंडिया टैक्स फेडरेशन या किसका था, वहाँ पे दैट सेशन रैन फॉर 4 or 5 months. एक्चुअली में क्या है, अब देखिए इसका 2 ways ऑफ लुकिंग है। अगर आप ऐसे समझेंगे तो एक्ट तो वही है, लैंग्वेज खाली चेंज हुआ है, तो आप एसेंस तो नहीं अलग से समझाना है, आपको तो खाली लैंग्वेज का डिफरेंस दिखाना है, जैसे जो मैंने अभी रेसिडेंशियल स्टेटस में दिखाया या अलग अलग जगहों पे दिखाया। तो वो डिफरेंस समझाने के लिए उतना लंबा दरकार भी नहीं है। तो वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं, बिकॉज जब मैंने भी दिया तो मैं आफ्टर अ पॉइंट आई ऑल्सो थिंक कि क्या अलग चीज़ क्या बोलना है।
Because you and me, we all know what is 180 today, 60 plus 365. अब उसको खाली लैंग्वेज और डिफरेंट किया, उसमें क्या चेंज आप बताओगे? तो वो चीज़ है. With this, we come to an end of the first session. I'd like to thank C. Ayush Goel for his wonderful deliberation. I think he touched upon the key structure, framework, and the architecture of the Act beautifully, and he also touched upon the definitions and its importance and how it has been simplified. I request everyone to kindly give a round of applause since he'll not be